Namaste and welcome to Namak Mirch, a space where we talk about what many of us experience but rarely have a chance to openly discuss, like life after marriage, relationship with in-laws, and everything that comes with building a journey of new life. Happy married life. ये टॉपिक लगता सुनने में बहुत आसान है, लेकिन उतना है नहीं। एक लड़की को शादी के बाद कितनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं हूँ दीपाली रेखी, एक होस्ट, एक साथी जो आपका साथ निभाएंगी इस नए सफर में। Here we talk openly, honestly and with a whole lot of heart. You're not alone in this, and together we explore all the खट्टा मीठा moments that come along the way. So let's add थोड़ा नमक, थोड़ा मिर्च and lot of warmth to the conversation that truly matter. आज हम बात करेंगे उस बारे में जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, और वो है शादी. It's painted as a beautiful new chapter. But let's face it, it comes with its own share of fun moments and challenges. And who better knows about it? Who better talk about it than us, the ones living through it? भुक्तभोगी. अच्छा, वैसे आप सब एग्री करोगे मेरे साथ एक टॉपिक के बारे में, which is mental health, which is I think most commonly discussed topic today. And it's very good thing we all are very well aware about this topic. आज की डेट में हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ दूसरों की भी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, विच इज़ अमेजिंग, कमेंडेबल. बट क्या कभी आपने सोचा है व्हाट अबाउट हर? लेट मी आस्क यू, व्हेन वाज द लास्ट टाइम वी स्टॉप्ड टू थिंक अबाउट हर मेंटल हेल्थ? कुछ याद है आप लोगों को? द वुमन हु लीव्स बिहाइंड अ होम, हर फैमिली, अपने बचपन की यादें, हर मेमोरीज, एवरीथिंग, इवन समटाइम्स हर ड्रीम्स टू क्रिएट अ लाइफ विद अ लाइफ पार्टनर. इज इट दैट ईजी? कभी आप लोगों ने सोचा है that single one day takes a toll on our health? It is so difficult for someone to leave everything and comes to a new house, new family. कभी सोच के देखिएगा. And all the married ladies out there, if you agree with me, give me cheers in the comment section. हाँ, तो उसकी mental health का क्या? कभी सोचा है आपने? She has to adjust to new family, new home, new rules. ऐसे लगता है जैसे कोई मैनुअल तैयार करा हो या कोई रूल बुक लिखी हो जिसको आपको फॉलो करना ही करना है. अगर शायद नहीं करेंगे तो कोई अनर्थ ही हो जाएगा. आई डोंट अंडरस्टैंड वाई. वो अपनी मर्जी से कुछ कर क्यों नहीं सकती? एंड ऑफन दिस एडजस्टमेंट इज अ लोनली रोड. एंड सडनली आफ्टर मैरिज men develops a syndrome which is often referred as राजा बेटा सिंड्रोम, या यूँ कहें माँ का लाल. और सडनली उसके अंदर एक इच्छा सी जाग जाती है कि बस मुझे माँ बाप की सेवा करनी है और मेरे लिए कोई कुछ भी नहीं है. एंड ही डेवलप्स अनदर सिंड्रोम. वो अचानक से श्रवण गुप्ता बन जाता है. नहीं, श्रवण गुप्ता किसी का नाम है एक्चुअली, श्रवण कुमार बन जाता है. और हमारी अबला नारी बेचारी रह जाती है अकेली टू वॉक ऑन दैट लोनली पाथ. यू सी, इन मैनी इंडियन हाउस होल्ड्स द डायनामिक्स विद इन-लॉज आर ऑफन सोर्स ऑफ टेंशन. जैसे ही लड़की काम पे जाती है तो खाना क्यों नहीं बनाया? खाना तो बना के जा सकती थी ना. उसकी बहू भी तो ऑफिस जाती है, वो भी तो काम करती है, वो तो खाना पूरा बनाती है, ये तो चाय भी नहीं पूछती. देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कीप्स ऑन spoiling the relationship further on. Our society has painted them as rude, arrogant, villains. But let's take a moment to reflect. Relationships, whether it's with your spouse or in-laws, it comes with their own good and bad sides. And that's what Namak Mirch is all about. The conversations which we shy away from. Honest, unfiltered, and hopefully healing. We'll talk about the topics that many of you might relate to, जैसे the infamous Raja Beta syndrome, your favorite. The heartbreaking reality of no support from your husband or your partner when you need him the most. And let's not forget the question that has haunted generations. Why is always the daughter-in-law who must adjust? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे these things comes from generational gaps. जैसे for example, the entire thing. सास यूजुअली इतनी खड़ूस क्यों होती है? सास को एहसास क्यों नहीं होता? सास हमें सांस क्यों नहीं लेने देती? बताइए, कैन यू टेल मी? एक्चुअली होता ये है कि सास जो है अपने पुराने जो उनके स्कार्स हैं उनको लेकर आगे बढ़ रही होती है कि भाई मुझे इतना ट्रॉमा मिला है तो मैं तो आगे इसको फॉरवर्ड करूँगी ही. बट समझिए, ये कोई
विरासत थोड़ी है या फिर कोई लीनेज थोड़ी है जो आपको नेक्स्ट जनरेशन को फॉरवर्ड करनी ही करनी है। इज इट रिक्वायर्ड? नो, इट इज़ नॉट, ट्रस्ट मी। बट समझिए, हमारा मकसद कोई चुगली करना नहीं है या किसी की बुराई करना नहीं है। हमारा मकसद है कि ये फाइट्स क्यों होती हैं, ये लड़ाइयाँ क्यों होती हैं, इनको सॉल्व करना। और एक जो माइंडसेट सदियों से चला आ रहा है, वाई इज़ द वुमेन एट ऑलवेज द फोर फ्रंट ऑफ सेक्रीफाइस, इसको चेंज करना। हमें हर चीज़ का सोल्यूशन निकालना होगा ताकि हम जिंदगी में आगे बढ़ें, खुशियों की तरफ बढ़ें और एक अच्छा कुटुंब बनाएं जो कि खुशहाल कुटुंब हो। देखो, मैरिज इज़ नॉट अबाउट विनिंग और लूजिंग, इट इज़ अबाउट ग्रोइंग टुगेदर। एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता जहाँ दो अनजान लोग आके एक साथ रहते हैं, एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। कई बार लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हंसी ठठाके भी होते हैं, मज़े भी करते हैं, दुख भी होते हैं, अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं, लेकिन फिर भी साथ रहते हैं। सो ऑल द व्यूअर्स, whether you are a newly married girl or a mother-in-law or a husband, there is something here for everyone. So my dear viewers, let's grab the cup of chai or a cup of coffee or a glass of nimbu pani, whatever you like, and let's begin this roller coaster ride. Let's unlearn, learn and create a healthy relationship. कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं, one conversation at a time. और ये सब आपके पास टाइम से आता रहे। Make sure you subscribe to our channel, press the bell icon and be notified whenever we drop a new episode. Stay tuned and don't forget to add little namak and little mirch to your life.